السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، ایک طرف ملک میں سرد ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب سیاسی درجہ حرارت ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے اب آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسے شاید کہیں پر برف کچھ پگھل رہی ہے۔ مذاکرات کے دور کی خبریں سن رہے ہیں، اہم کیسز کی سماعت ہوئی اور ان سماعتوں سے پی ٹی آئی کو کیا امیدیں ہیں یا کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ضرور بات کریں گے۔ البتہ جو ممکنہ عدالتی فیصلوں سے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہیں اس پر بھی تجزیہ لیں گے۔ پی ٹی آئی بالآخر حکومتی سیاستدانوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہو چکی ہے اور ملکی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کس کو اپنے رویے میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے تو آج سینٹ میں یہ کہہ دیا کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ کس کو جتوایا گیا یہ سب کو پتا ہے، اور پی ٹی آئی سے انہوں نے اس الیکشن کا حساب کتاب مانگ لیا ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے راستہ دیا جائے اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کا جو اتحاد جسے غیر فطری اتحاد کہا گیا تھا وہ اب کتنا کامیاب ہوگا اور آگے چل کر کیا گل کھلائے گا یہ بھی جانیں گے۔ سیاستدانوں کے پاس اب آپشن کیا ہے، کہاں تک بات پہنچے گی، یہ تمام آج کے پوائنٹرز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف آپ کو کروا دوں۔ فاروق ڈاڈی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ پروفیسر سلمان راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا بخش سومرو صاحب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، جلدی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ آپ سب کو بہت خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں، اور پہلے بات میں کرنا چاہوں گی فاروق ڈاڈی صاحب آپ سے، کہاں برف پگھل رہی ہے، کہاں کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان سیاسی معاملات میں۔ برف پہلے جمی ہوئی تھی، اب کچھ صورتحال واضح ہوتی جا رہی؟ دیکھیں، ہم نے اس ملک کو اپنے عروج پہ بھی دیکھا ہے جی، اس ملک کو 71 میں ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے جی، اور آج میں اس ملک کو بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو یہ انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری عدالتوں کا جو تماشا بنایا ہوا ہے، ہمارے قانون کا جو مذاق بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ ہو یا عدالتیں جو ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہو؟ کیا کہیں ایسا دیکھا ہے کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سے ججز رہیں گے یا اپنے من پسند ججز کو وہ لگائے اور اپنے من پسند فیصلے دے؟ یہ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ نام لوگ جگہ سائی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں آپ، انٹرنیشنل اخبارات دیکھیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کیا انویسٹمنٹ کریں گے؟ آپ کی اکانومی پوری تباہ ہو چکی ہے، آپ نے جو لونز لیے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو کھلواڑ کیا ہے، بجائے یہ کہ وہ لون جن جگہ لگانا چاہیے اس کے بجائے آپ اس سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تماشا بنایا ہوا ملک کو آج 130 ارب ڈالر کا مقروض کیا ہوا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے جو اتنا بڑا قرضہ لیا ہے تو یہ پیسہ گیا کہاں، جاتا کہاں پہ؟ یہ ہم عوام کو تو کچھ نہیں ملا، ہماری جیبوں سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، ہماری جیبوں سے آپ جو ہے الیکٹرک کے بل لے رہے ہیں۔ اگر ہمارا بل 100 روپے کا ہے تو آپ 1500 روپے اس کے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد ہر پاکستانی، چاہے وہ مخیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے متوسط طبقے کے ہے، کوئی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، وہ اپنا چولہا چلائے یا اپنا گھر چلائے یا کھانا کھائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو خیر عوام فیس کر رہی ہے۔ دیکھنے میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اور حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بڑے استحکام کی جانب جا رہی ہے اور اس کے اشاریہ اسٹاک میں نظر آ رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی طرف اگر ہم نظر کریں تو صورتحال بہت ورسٹ ہے۔ عام آدمی بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، بہت سارے ٹیکسز کے نیچے دبا ہوا ہے۔ پروفیسر سلمان راجہ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب جیسے فاروق ڈاڈی صاحب نے کہا کہ جو حکومتی جو نمائندے ہیں وہ آئی ایم ایف سے پیسے تو لے رہے ہیں لیکن وہ عوام پہ خرچ نہیں کر رہے، لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، وہ جا کے سرمایہ کاروں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، انہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور سرمایہ کاری کریں، تو یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے حکومت کا؟ ایک
कमरा है, उसमें बदतरीन कचरा पड़ा हुआ है. अच्छा. आप उस कचरे में से चंद थैले और कागज और गंदगी हटा के बाहर फेंक दें और आप कहें जी मैंने सफाई कर दी है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है. मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा फारूक साहब के साथ कि ये जो कर्जा है कहाँ जाता है. और मुझे नहीं लगता बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है. ये बर्फ पिघलना नहीं कहूंगा मैं इसको जो थिंक टैंक की लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि ये आर्म ट्विस्टिंग चल रही है. अच्छा. पीटीआई की और एक तरफ और आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ उनको घुटनों पे लेके आ गए हैं वो. अब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और मुज़ाकरात एक्चुअली गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट के तो नहीं है इतने, कह लीजिए इतनी गट्स नहीं है कि वो मुज़ाकरात करेंगे. मुज़ाकरात जिनसे होने उनके साथ होने चाहिए. अच्छा. तो किसी हद तक आइस इस तरह पिघली कि मुज़ाकरात जो होंगे उस पर वो अपने टर्म्स पे बात करेगी एस्टैब्लिशमेंट. और पीटीआई अब इस पोजीशन में आ गई है कि उसको मानना पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि जो लास्ट बैटल उनका हुआ वो बैकफायर कर गया, वो मैच्योर नहीं हुआ जिस तरह वो चाह रहे थे. तो इस सारे प्रोसेस के अंदर मुल्क कहाँ जा रहा है? अदलिया जो है वो अपना इंसाफ दिखाने में लगी हुई है कि भाई ये इंसाफ हम दे रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ट्रू सेंस में दिया जा रहा है. जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के मातहत कोई अदालतें नहीं होती, दुनिया में नहीं होती. हम अपना मजाक बना रहे हैं. दूसरा, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट मीडिया जो है वो खबरें बना रहा है, खबरें दिखाई जा रही है, ये भी एक एस्पेक्ट है. और जो स्टैब्लिशमेंट है तो वो सर हमारा तो काम ही है ना खबरें बनाना, खबरें दिखाना. देखें हमने आपको भी तो इनवाइट किया, हम आपके भी तो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं ना. मतलब हम तो हमें अपना बिग काम पिक्चर कर में रहे हैं. सुमाइला, हमें बिग पिक्चर में देखना ये हर चाहिए. चैनल नहीं करता ना. मैं बिग पिक्चर बता रहा हूँ कि देखें मीडिया अपना काम कर रहा है जो बजाय खबरें बनाना है, और उसमें बहुत ज्यादा मसरूफ है. अदलिया जो है वो इंसाफ दिखाने में मसरूफ है, एक्चुअली इंसाफ मिल नहीं रहा है. इसी तरह मैं कह रहा हूँ, और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने आप को ये साबित करने में मसरूफ है कि हम गैर जानिबदार हैं. अच्छा. सियासतदान जो है वो अपने मफाद परस्ती में मसरूफ है, सियासत चमकाने में मसरूफ है. आवाम फंसी हुई है मसाइल के अंदर कि पानी आ रहा है, कराची में पानी नहीं आ रहा, बिजली आ रही है, बिजली नहीं आ रही, गैस आ रही. आवाम अपने मसाइल को निपटाने में मसरूफ है. लेकिन इन सबका मजमुआ जिसको हम मुल्क पाकिस्तान कहते हैं वो परेशानी का शिकार है, वो तबाही की तरफ जा रहा है, वो नुकसान की तरफ जा रहा है. इट्स अबाउट टाइम हम अपने गिरेबान बर्फ पिघलाएं, आप बर्फ जमाएं, मुल्क की तरफ लेके, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं. अच्छा, ये इंडिकेटर नहीं है जो आपने अर्ज किया. जी कि ये जो नहीं, ये इंडिकेटर मैं नहीं अर्ज कर रही, ये तो हुकूमत कह रही है कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर चला गया है. तो ये तो बहुत जबरदस्त मतलब आशारियां, मजबूत इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है ना, इस पे तो हम खुद हैरान है सर. इंडिकेटर्स हमारे मुल्क के अंदर जो ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्राउंड रियलिटीज इतनी बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज 1,10,000 को आज क्रॉस कर गई ना, उससे 1 टके का फायदा नहीं हुआ किसी गरीब आदमी को जिसके घर का बिजली का बिल आ रहा है. सोने पे आज फिर 3100 रुपए बढ़ गया है, फी तोला सोना बढ़ गया है. ये सारे इंडिकेटर्स बताते हैं ना, सोने का बढ़ना, स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिकेटर है महंगाई का. ये इंडिकेटर जो है मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाते. ठीक. 130 अरब डॉलर का कर्जा कम होगा तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. गरीब को बिजली, पानी, रोड, गैस मिलेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, तो मुल्क जो तरक्की की तरफ जाएगा. इंडिकेटर्स तो ये हर दौर में रहे, और ये इंडिकेटर्स दिखाते दिखाते तो हम 130 अरब तक पहुंच गए. तो इसका ऑडिट करें. दूसरे 2008 से 2018 तक का IMF से जो कर्जा लिया है ना, 34 अरब से 94 बिलियन डॉलर तक 10 साल में चला गया. सिर्फ उतना ही ऑडिट कर लेंगे 10 साल का. अच्छा. सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन कौन करेगा? अदालतें भी इनके मातहत है. और जब भी आपने देखे ये PDM 1 की गवर्नमेंट के बाद ये PDM 2 आई, इन्होंने जितनी भी आईनी तरमीमात की है वो सारे अपने मुफादात के लिए. पहली तरमीम की जिसमें उन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस खत्म कर दिए एक आईनी तरमीम के तहत. इन्होंने इलेक्शन को ऑटोमेट AVM जो मशीन थी, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी उसको खत्म कर दिया. और ये झगड़े, ये फॉर्म 47 के और इसके लाके खड़ी कर दिए. हम और आप तो इसी चैनल के ऊपर लाइव चल रहे थे और जो नताइज आ रहे थे उस पर तबसरा कर रहे थे. रात को 10:30 और 11:45 बजे नताइज हमारे सामने रखे हुए थे. जब मुझे ये कहा गया था यास्मीन राशिद 85,000 वोट से जीत गई है, तो मैंने कहा था सुबह जब ये कौम उठेगी ना सो के, तो वो देखेगी जो चौथे नंबर पे कैंडिडेट है वो जीता हुआ है. तो बहरहाल ये तमाशा हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है. तो ये आपने एक फैज हमीद को गिरफ्तार करके उसका कोर्ट मार्शल करने की बात करते हैं, तो कितने ऐसे फैज हमीद गुजर चुके और कितने फैज हमीद आज भी मौजूद हैं. तो उनका सबका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, पूछे उनकी मनी ट्रेल होनी चाहिए. और मैं दोबारा ये बात रिपीट करूंगा, मैंने 2 दिन पहले एक और चैनल पे ये डिमांड की थी कि जितने भी वो सरकारी अफसरान है, सिविल मिलिट्री जो भी है,
रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक उनको मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उनकी तमाम चीजों की मनी ट्रेल, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक अकाउंट, उनके फॉरेन एसेट, हर चीज की जब उसकी क्लियरेंस हो जाए उसके बाद वो 5 साल के बाद मुल्क को। ये फारूक दाढ़ी साहब की एक अपील है या एक रिक्वेस्ट है, ये कहेंगे कि वो ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये इनका अपना एक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जी। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आवाम मसाइल में फंसी हुई है, जबकि हर शख्स जो कि जिम्मेदार है इस कौम या मुल्क की तबाही का, वो सब अपने अपने मफाद में लगे हुए हैं, ऐसा कहना है। हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं, ये जो समातें हो रही हैं पीटीआई की, और जो हम ये कह रहे हैं, जो आपने इससे पहले कहा कि बर्फ आपको पिघलती भी कहीं नजर नहीं आ रही है सलमान राजा साहब, तो कैसे मसाइल का हल होगा अगर ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तो ये तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और आवाम को, जो आपने कहा कि आवाम फंसी हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि जो हमारे एनालिस्ट आते हैं वो ये कहते हैं कि आवाम को बाकायदा तौर पे फंसाया जा रहा है इन तमाम तर सिचुएशंस में। बताइए। देखिए शुमाइला, जितना मेरी नाक़िस इल्म के अंदर मैंने तारीख को स्टडी किया, जितने भी आपने भी देखा होगा पास में जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, नेगोशिएशंस जितने भी हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो 2014 का धरना हो या उससे पहले का हो, कोई रिजल्ट निकला आज तक? एग्रीमेंट होता है, उस पर साइन हो जाते हैं और बाद में वो रद्दी की टोकरी में जाता है। तो ये निगोशिएशंस में कोई सीरियस नहीं होता, ये सिर्फ मौके का फायदा उठा के वक्त गेन करना होता है, या आर्म ट्विस्टिंग, जैसे मैंने कहा। अगर जिसका हाथ पड़ता है वो अगले की आर्म ट्विस्टिंग करता है, और जिसका हाथ नहीं पड़ता वो बोलता है चलो ठीक है मैं थोड़ा सा नरम पड़ जाऊं, आगे निकलूं, वक्त निकाल लूं। अच्छा। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का शेवा रहा है हमेशा से। अब रही बात एस्टैब्लिशमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट का जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना, एस्टैब्लिशमेंट का वे ऑफ मोडस ऑपरेंडी है, वो अलग तरीके का है। उसको हम कहते हैं, आर्मी में कहते हैं कि डोंट गो फॉर द किल, आप दुश्मन को भगाओ, दौड़ाओ, अच्छा, थकाओ। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो में ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बर्फ पिघलती नजर नहीं आ रही, ये मौके के अंदर बदलाव है। अब जो अदालत के अंदर केसेस लग गए हैं और उसके जो फैसले हो रहे हैं, उससे जो रिजल्ट आएंगे, अब हमें ये भी पता है, जैसे फारूक साहब ने कहा, कि अदालतें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बायस्ड हमारी होती हुई नजर आती हैं, और हैं। मैं धड़ल्ले से इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि देखिए ना, हिस्ट्री उठाए पाकिस्तान की, क्या हम लोग हैं अनबायस्ड, या हम इतने क्लैरिटी में है कि हम सही इंसाफ दे रहे हैं, कि अदालतें अपने गिरबान में खुद झांकें? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जुडिशरी सिस्टम, हमारा सियासतदान अपने गिरबान में खुद झांके, एस्टैब्लिशमेंट अपने गिरबान में झांके। अच्छा, ये सब क्यों बनाए गए इदारे? आवाम के लिए, उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो ये सबसे ज्यादा सफर आवाम ही। अगर किसी, देखें वो अंग्रेजी में मुहावरा है कि जिस चीज के मकसद के लिए आप कोई काम करें ना, और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो वो काम बेकार है, वो प्रोसेस भी बेकार है, उसका करना भी बेकार है। तो ये मुल्क बना है आवाम के लिए, ये इदारे बने हैं आवाम के लिए, ये सियासतदान सियासत कर रहे हैं आवाम के लिए, निजाम चल रहा है आवाम के लिए, गवर्नमेंट बनी है आवाम के लिए, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है आवाम के लिए। इसका बेनिफिट अगर आवाम तक नहीं पहुंचता, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बेबुनियाद है, बकवास है, किसी काम नहीं। इससे पहले यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे किसी एनालिस्ट के ये जुमले थे कि हर इदारे की तौहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आवाम की तौहीन जब की जाती है तो उसके लिए आवाम की तौहीन का कोई नहीं सोचता है। तो छोटा बड़ा तजलील पे आ चुके हैं हम लोग, आवाम जो तजलील हो रही है। आप क्या एक शऊर आप डेवलप कर रहे हैं, मुआशरे में आप बड़ा काम कर रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आई थिंक आप, तो आप कितना कामयाब हो? आप देख रहे हैं कि आवाम में वो शऊर डेवलप हुआ है कि वो अपने आवाज़ उठा सकें अपने हक के लिए, या सही को सही और गलत को गलत कह सकें? कुछ ऐसा है या मामला वैसे के वैसे ही हैं? अफसोस के साथ कि किसी भी कौम के अंदर ना ये सब बातें तब पनपती हैं जब आवाम को बुनियादी सहूलियात होती नहीं। कोई भी इंसान, उसकी अगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही ना, उसको खाना टाइम नहीं मिल रहा, उसको कपड़ा पहनने को नहीं मिल रहा, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो वो इंसान सोचने समझने से कासिर हो जाता है, वो जानवर की जैसे बिहेवियर के ऊपर आ जाता है। तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आवाम को नहीं मिल रही ये सब चीज़ें, तो शऊर की तो हम बात में करेंगे। दूसरा है कि तालीम का शदीद फुकदान है।
میں کہتا ہوں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, جو بھی آپ کے اختلافات ہیں, سیاسی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو ہے, جوڈیشری کے اپنا مسائل ہیں, یہ سب اپنی ایک طرف, لیکن عوام کو تعلیم تو دو, بچوں کو نیوٹریشن تو دو, کھانا تو دو ان کو. اتنی تو معاملات سیدھے کر لو کہ وہ روڈ پہ چل سکیں, کھڈے میں نہ گریں. اتنے تو معاملات سیدھے کر لیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی سکون سے مل سکے, اور مزدوری بھی کرے تو ان کو ایک لائف, بیسک اسٹینڈرڈ آف لائف زندگی گزار سکیں اس کے ساتھ. آپ مثالیں دیتے ہو جاپان کی, مثالیں دیتے ہو دوسرے ڈیولپ کنٹریز کی, ان سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور آپ اس خام خیالی میں رہتے ہیں کہ ہم ایک دن پوری دنیا پہ رول کریں گے. یہ تو ایسی مثال ہے کہ محلے کا جو بد کردار ترین انسان ہے, جو ناکام ترین انسان ہے, جس نے قرضے لیے ہوئے ہیں, جو ڈوبا ہوا ہے قرضوں کے اندر, جو اپنی بات پہ پورا نہیں اترتا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, وہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ ایک دن میں اس پورے محلے کو جو ہے رول کروں گا. یہی پاکستان ہے اور یہی ہمارا حال ہے, یہی ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے, یہی ہماری گورنمنٹ کا حال ہے, اور یہ امیج ہمارا ورلڈ میں جا رہا ہے اس وقت, افسوس کے ساتھ. ہاں, انٹرنیشنل لیول پہ ڈاکٹر صاحب ہمارا امیج جو ہے وہ بڑا خراب ہو رہا ہے کئی معاملات میں. اچھا, ہم اگر اپنے مسائل کچھ میڈیا پر بھی لا کے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی obviously وہ انٹرنیشنلی بھی وہ چیزیں جاتی ہیں, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے تو وہ بڑا پاکستان کے امیج کو متاثر کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے تو یہ سلو ہو گیا ہے, نیٹ بھی سلو ہو گیا ہے, اور اس کے لیے وی پی این بھی بند کر دیا. تو یہ اقدامات صحیح ہیں حکومت کے؟ دیکھیں, یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ہاں بل گیٹ خود چل کے آیا, لیکن آپ نے اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کیا. بس آپ نے یہ کہ وہ خان صاحب کی حکومت کے دوران کیوں آیا, ٹھیک ہے نا, بات یہ نہیں ہے کس کی آیا, تو پاکستان کے لیے تھا نا. اگر وہ کام چل جاتا, ایک بار یہی نواز شریف کی حکومت کا دوسرا دور تھا جب 2 پاکستانی بل گیٹ کی طرف سے آئے تھے اور یہاں پہ مائکروسافٹ یونیورسٹی لگانے. احسن اقبال صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. ایگزیکٹلی, جی جی. اور احسن اقبال نے یہ کہا کہ بل گیٹ سے کہو مجھ سے بات کرے. ارے یہ 2 بندے آئے, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بل گیٹ کو انڈین پرائم منسٹر کا فون گیا, وہ گئے وہاں پہ انڈیا میں, انہوں نے مائکروسافٹ یونیورسٹی $35 ملین سے قائم کی, اور انہوں نے کہا کہ میں ہر سال $100 ملین اس کی گرانٹ دوں گا. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ 1 ملین 10 لاکھ انڈین اسٹوڈنٹ بیچز وائز سلیکون ویلی گئے, ٹریننگ لی, اور آج انڈیا $180 ارب پر اینم سالانہ جو ہے آئی ٹی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہا ہے. بل گیٹس کو شاید یہ میسج بھی دیا گیا تھا کہ وہاں پر ٹیلنٹ زیادہ ہے کیونکہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے. یہ بھی شاید ایسا, یہ بھی ہمارے پاس کون سی آبادی کم ہے, ٹھیک ہے ان کے پاس, لیکن یہ آج آپ کو پتا ہے یعنی کچھ ایسے فیصلے جو وقت پہ نہیں کیے گئے اور ان کو اگنور کیا گیا, یہ بھی پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوا. مولا بخش سومرو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم مولا بخش سومرو صاحب. جی وعلیکم. سومرو صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں, اور جاننا چاہیں گے جو مذاکرات کی جو بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے راضی ہو گئی ہے اور اپوزیشن اور حکومت میں مذاکرات کے لیے اب برف پگھلنے لگی ہے, تو کیا معاملات چل رہے ہیں سر, بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی. دیکھیں 2 چیزیں, پی ٹی آئی ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں بلیو کرتی ہے, پر اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ میں بلیو کرتی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو. جو ابھی والی حکومت ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو خود 47 فارم کے تحت آئے ہوئے. اگر ان کے ایم این اے سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف ہوئے ہوئے. ابھی تک تو ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ 45 والے یا 47 والے. تو جن کے ہاتھ میں لگام ہے اس ٹائم. سر یہ آپ سے بات ہوئی ہے ان لوگوں کی؟ کن سے؟ جو ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے, آپس کی کنورسیشن آپ شیئر کر رہے ہیں؟ حکومت کی پارٹی کے کئی سارے ایم این ایز ہیں جو خود ہی اس ٹائم بے لگام گھوم رہے ہیں, ان کو خود پتا نہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے, انہیں کس طرف جانا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اندرونی طور نون لیگ سے خوش نہیں ہے, پر پھر بھی حکومت کا ایسا 26ویں ترمیم یہ پاس کر دیتے ہیں, بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غلطی ہو گئی. 6 کنال کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ پہلے خود بل پاس کرتے, پھر کہتے 6 سال تم نے نہیں کرنا تھا, یہ تو سندھ کی دشمنی ہے. تو اس میں حکومت خود کی ایک پیج پہ نہیں ہے, پیچھے حکومت چلنے والے بھی اور ہیں. اچھا, تو سومرو صاحب مولانا صاحب کوئی کردار ادا کریں گے
देखिए मौलाना साहब के लिए हम भी एहतराम करते हैं, बाकी जो पार्टी इक़्तिदार में वो भी एहतराम करते हैं, पर बात ये कि मौलाना साहब के हाथ में भी कुछ हो तो वो कर पाए ना, क्योंकि वो जिनके आसरे में चल रहे, मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब को डिलीवर कर पाएंगे सर। लेकिन आज तो जो आपके पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने तो आज कह दिया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमें रास्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि सेनेट में मैं हुकूमत के साथ हमारी कमेटी बन गई और हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो बहरहाल रास्ता तो मांगा ना उन्होंने, मुज़ाकरात बर्फ तो पिघली है ना, राब्ते रहते हैं, कमेटियां बनती रहती, पर बात ही कि जिस चीज के लिए हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे, पार्टी की तरफ से जो फाइनल कॉल दी गई थी उसमें 3 चीजें थी और जायज चीजें थी। जमहूरियत में ये चीजें होती हैं। हमने कहा था जो 47 फॉर्म वाले उनको वापस किया जाए, मैंडेट हमारा पीटीआई का हफ्ता वापस किया जाए, ये फैसल राजा साहब भी कहते रहे हैं। दूसरा हमने कहा मुल्क में जो कानून है, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, उसको इम्प्लीमेंट करें। तीसरा हमने कहा था खान साहब के ऊपर जो इतने सारे केसेस बनाए गए हैं उनकी रिहाई की जाए, उनको बेल दी जाए। केसेस तो कोर्ट में चलते रहते हैं और जितने केसेस बनाए सारों में उनको बेल हो जाती है। जिस दिन बेल हो जाती है उस दिन 14 और मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो जाते हैं। तो ये सियासी केस नहीं है तो और क्या है। 3 हमारी ये थी। अब मुज़ाकराती कमेटी ने भी इन 3 चीजों को ही आगे रखना है। चले ठीक है। बहुत शुक्रिया मौला बख्श सुमरो साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फारूक डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल आप बनती हुई देख रहे हैं उसमें कैसे देखते हैं? पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है, हुकूमत तैयार हो चुकी है, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुल्की सियासत को अगर मद्देनजर रखा जाए तो किसको अपने रवैये में लचक की जरूरत है? देखिए, बात यह है कि पीटीआई मुज़ाकरात करेगी तो किससे करेगी? फॉर्म 47 की हुकूमत से, जिन्होंने उनका मैंडेट चोरी किया। असल सीटें तो मैं तो इसलिए वसूख से कह सकता हूं कि मैं एक तज्जियाकार के तौर पे मैं तो खुद इलेक्शन रिजल्ट पे तबसरा कर रहा था। तो जिसका आपने मैंडेट छीन लिया और एक 2 नंबर तरीके से आप आ गए, उससे बात करेंगे। अगर मैं होता तो मैं तो कभी भी नहीं करता। ठीक है, बात ये कि देखें, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये टाइम पास है। यहाँ पे जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है हर चीज़ हो जाती है। नवाज शरीफ के लिए प्लेन के अंदर जाके वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी हो जाता है। दिनों दिन में सारे उनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं। आज इमरान खान उनके साथ डील कर ले, कल आप देखें कैसे केसेस ख़त्म होते हैं। तो बात ये कि जब तक हमारे इदारे खुद मुख्तार नहीं होंगे, जब तक हमारे सारे इदारे जो है ऑटोनोमस बॉडी नहीं होंगे और जब तक इनके अंदर मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी, ये मुल्क का यही हाल रहेगा और हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन लोग क्यों नहीं समझते कि इसका एंड एक दिन होना ही है। हाफिज बशारत की आप देख लें, हाफिजुल असद की हुकूमत को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, तो आप कितना जुल्म करोगे इस कौम के साथ, हमारे लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर जिनका हक था कि आपने उनका मैंडेट चोरी किया। वो एक पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, आपने सीधी गोलियों से उनको भून दिया। सारी दुनिया में वो वीडियोस चल रही है और हमारा जो नाम खराब हो रहा है। शर्म आती जब आज हम सुनते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो तबसरे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें, बहुत सारी कुछ चीजें फेक भी हैं, बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बहुत सारी चीजें। सलमान डॉक्टर साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जरूर बताइए। फारूक साहब ने सही कहा। मैं इस चीज को इस तरह देखता हूँ कि ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया आज के बर्फ पिघली, और गौर साहब का स्टेटमेंट भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात स्टार्ट नहीं हुए पर हम कोशिश कर रहे हैं कोई वे आउट निकालें। ये जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी है, इसके पास मॉरल इंटेग्रिटी नहीं है, मॉरल ये बात कह लीजिए डिग्निटी नहीं है कि वो मुज़ाकरात के लिए आ गया है। दूसरी बात, जो फलसफा है मुज़ाकरात का, डिसीजन वो शख्स लेता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जिम्मेदार नजर नहीं आ रही, इसलिए उनके पास डिसीजन लेने की सलाहियत या शक्कत नहीं है। अब फिर डिसीजन कौन लेगा मुज़ाकरात? मैं इसको मुज़ाकरात नहीं कहूंगा, मैं इसको बर्फ पिघलना इसलिए नहीं कह रहा। ये भी सिचुएशन है, अभी भी टग ऑफ वॉर चल रही है एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में। अब दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कौन घुटनों पे आता है कदमों से। जो पहले घुटनों पे आएगा वो अगले वाले के आगे वीक होगा और वो डोमिनेट हो जाएगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है वो पीटीआई घुटनों पे आ चुकी है, जो कि रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब जिसको वो कह रहे हैं मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जी ऐसे ही सही या वैसे ही सही, मुल्क आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल, और लचक दोनों साइड से देनी चाहिए। सियासी जमातों को भी लचक और गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते तो खामोशी रखो,
यही बेहतर है। अच्छा खामोशी में एक पार्टिसिपेशन होती है ना, खामोशी तो नीम रजामंदी होती है सलमान साहब। तो खामोश हो जाए तो मामला से आगे बढ़ जाए। अच्छा। क्योंकि जैसे ही कुछ बर्फ एक्चुअली पिघलने लगती है, कोई ना कोई बयान आ जाता है, गवर्नमेंट अपने फ्रीजर लेके पहुंच जाती है अच्छा बर्फ को वापस जमाने के लिए। अच्छा ये भी तो हो रहा है, ये भी तो नोट करें आप। तो बहरहाल अच्छा, ये जो अभी बात की मौला बख्श सुमरो साहब ने, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये आपस में क्लैशेस चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी खुश नहीं है। ये हम कुछ दिनों से ये बयानात इस किस्म के आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं की जानिब से भी, तो इस रवैये को आप कैसा देखेंगे? नाज़रीन बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले मैं सलमान राजा साहब से बात करना चाह रही थी। सलमान राजा साहब बताइएगा, क्या ऑप्शंस रह जाते हैं सियासतदानों के पास? देखिए, पहले तो आपने अर्ज किया था ब्रेक से पहले कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में चप्पलिशें चल रही हैं। तारीख उठा के देख लीजिए, इन्होंने जो भी इत्तेहाद अव्वल तो किया ही इससे पहले, और जो भी बड़ा गैर फित्री इत्तेहाद सब कहते थे, उनके विजन अलग अलग है ना, उनकी अप्रोच ही अलग अलग है पॉलिटिक्स करने की। और पहले कुछ ऐसे बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं इन रहनुमाओं के आपस के एक दूसरे के, कि वो किसी तरह से मैच हो नहीं पा रहे, नहीं कर सकते, और वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। और दूसरा जो इन्होंने गैर फितरी इत्तेहाद किया भी है, वो मतलब परस्ती से है या वक्त की जरूरत है उनके लिए, उनकी मफाद परस्ती में। और सियासत में वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ की पाकिस्तान की सियासत तो वॉर के जैसी है ना। अच्छा। लोग समझते हैं एवरीथिंग इज फेयर, तो वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और जैसे ही मौका पड़ेगा, अगर लेट से मिड टर्म इलेक्शन कॉल हो जाते हैं जी, तो यही पीपल्स पार्टी नून लीग के गले पे छुरा रख के बैठी होगी, और यही नून लीग जो है पीपल्स पार्टी की तरफ बंदूक करके बैठी। तो इलेक्शन के कुछ है चांसेस आ रहे हैं कुछ इस उस पे? नहीं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी सीरियस एस्टैब्लिशमेंट नजर आ रही है इस मुल्क को रास्ते पे लाने के लिए, उस सीरियसनेस को देखते हुए, और जिस तरह अब तो ये भी आवाज उठा दी, वाडवा साहब ने कल बयान दे दिया कि हो सकता है मिलिट्री ट्रायल हो, और नजर भी होता हुआ आ रहा है। तो अच्छा, एक किसका? बानी पीटीआई का भी और फैज हमीद साहब का भी। अच्छा। तो एक तरफ ये बयान आ रहे हैं, और वाडवा साहब किसके इशारे पे बोलते हैं या किस मिजाज पे चलते हैं, क्या उनका डगर है, वो सब जानते हैं। और दूसरी तरफ ये बयान आ रहा है कि जी बर्फ पिघल रही है, डजंट मैच। तो मैंने जैसे कहा ना, आर्म ट्विस्टिंग, ये बस ये वही वाला मामला। तो अब ऑप्शंस ये बचे हैं कि पीटीआई को झुकना पड़ेगा, मफामत या समझदारी से काम लेना पड़ेगा, वक्त के तकाजे को समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में आपको लॉन्ग रन में सोचना होता है, एक मुकाम पे खड़े होकर डटना या अड़ना नहीं होता। ये पीटीआई को सीखना पड़ेगा वक्त के साथ, पाकिस्तानी सियासत में खास कर रहते हो, और पाकिस्तान में दुनिया भर में सियासत में यही होता है, चाहे वो अमेरिकन पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो, दुनिया में हर जगह पॉलिटिक्स में होता है। यू प्लान योर मूव अहेड, आप दूर अंदेशी से अपने कदम बढ़ाते हो, आप एक पॉइंट पे खड़े होकर अड़ नहीं जाते। ठीक है, आपके उसूल है, ठीक है, आपके बुनियादें हैं, आपके एक विजन है, उस विजन को अलाइन करें वक्त के हालात के साथ और फिर आगे बढ़िए। ये है समझदारी का और शऊर का, कह लीजिए, जो मुजाहरा। ठीक, तो ऑप्शन क्या रह जाते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। ऑप्शन ये रह जाते हैं कि वो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात में एंगेज हों जिनके साथ होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और मुझे लगता है बैक हैंड पे शायद इस पे पेशरफ्त हुई, बात हुई है। पिछले जो विजिट्स रहे हैं अडियाला के अंदर, उससे ये इशारे मिलते हैं कि बानी पीटीआई को समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है, और ये बात अंडर द लाइन, बिटवीन द लाइन हम रीड कर सकते हैं। अब वल्लाह आलम वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, और किस हद तक लचक पैदा हुई है। जैसे इन्होंने सुमरो साहब ने बयान दिया कि पीटीआई बिलीव करती है कि जी डायलॉग होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी बिलीव करती है डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग से क्या, जब मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि मेरी निगोसिएशन कुछ होगी। तो दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है और पीटीआई है, इन लोगों को भी चाहिए अपने स्टैंड को थोड़ा सा चेंज करें टुवर्ड्स लॉन्ग रन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। अपने अब वो जमाना नहीं रहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो पहला तरीके से पॉलिटिक्स ये लोग करते थे। वो पॉलिटिक्स थी, वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स थी। अब इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स नहीं है, अब परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स आ गई पाकिस्तान में। बिल्कुल, आवाम जो है वो कारकर्दगी पे ज्यादा ध्यान दे रही है, और खास तौर पे जो कारकर्दगी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की नज़र आ रही है, तो उस पर तो आवाम वैसे ही बिफर गई है। डाडी साहब, सियासतदानों के पास क्या रास्ता, क्या है, कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं, मुफाहमत या मज़ाहमत? देखिए, जो मेरा तज्जिया वो ये है, जब सियासी जमात के साथ आवाम होगी तो वो सही मानों में अपना रास्ता बनाती है। ठीक है, वो सियासतदान जो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए हैं, अब एस्टेब्लिशमेंट जब उसको नॉमिनेट करती है
और मैंने देखा कि जब मिसाल के तौर पे मियाँ साहब को जब इस्टेब्लिशमेंट या जनरल जिलानी वगैरह लेके आए, एक वो वक्त आया कि उन्होंने एक एथनिक पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नु लग के याग, मगर इस तरह के नारों से एक जज्बातियत को उभारा, पूरी पंजाब उनके पीछे चल रही थी। इस्टेब्लिशमेंट जब ये देखती है कि हमारा नॉमिनेट किया बंदा अब जो है उसको अवामी हिमायत बहुत ज्यादा मिल गई, तो फिर उसकी दौरे खींचने लगते हैं। ये चाहे कोई भी हो, चाहे MQM कराची में हो, चाहे पंजाब में वो हो, चाहे कोई भी हो। आज हम देखते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें सब एक तरफ, सारी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ और PTI एक तरफ। PTI क्यों एक तरफ है? इसलिए कि उनके साथ पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग उनको फॉलोइंग कर रहे हैं। वजह यह है कि आपने जो भी देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनके यानी कि कोविड के बावजूद 6.38% GDP ग्रोथ रेट चल रहा था। मुल्क के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव जा रहे थे और मुल्क इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था कि मैंने आपको बिल गेट की मिसाल दी कि खुद चल के पाकिस्तान आया। आपके फैसलाबाद में स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा था और लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, मशीनरीज मंगाई, सब कुछ मंगाया। आपका काश्तकार खुश था, आपकी क्रॉप अच्छी चल रही थी, उनको पैसे अच्छे मिल रहे थे। आपकी एक्सपोर्ट 26 अरब से 32 अरब डॉलर की चली गई थी। आपके FBR की जो महसूलात की कलेक्शन थी वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपने हदफ से ज्यादा 240 अरब रुपए उन्होंने ज्यादा वसूल किए। तो कहने का मकसद ये कि जिस तेजी से वो तरक्की कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, अगर वो सिलसिले को रोका नहीं जाता, आज मैं इसकी प्रेडिक्शन देता हूं और मैं दावा करता हूं कि आज इस मुल्क में डॉलर 80 से 100 रुपए का होता, आज इस मुल्क में पेट्रोल 40 रुपए का होता। और ये जो शुगर माफिया है यही हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये बिजली हमें जो महंगी दे रहे हैं यही सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि ये क्या कम नहीं कर सकते? तो डाडी साहब, ये नायब वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी सेनेट में कहा है, इसाक डार साहब ने कहा है कि 2018 का इलेक्शन किसको जितवाया गया, इसका जवाब दें। PTI से वो जवाब मांग रहे हैं, इसको किस सिनेरियो में आप वो देखते हैं? मांगे ना, जिसकी तरफ इशारा उससे मांगे ना जवाब। क्यों नहीं मांगते उनसे जवाब? उनसे जवाब मांगे कि भाई ये कैसे आए। अच्छा, वो ये सवाल कर रहे हैं तो उनसे ये भी तो पूछा सकते हैं, उससे पिछले इलेक्शन किसने जितवाया? ये कोई सीक्रेट बात है या कोई हिडन ट्रुथ है पाकिस्तान के अंदर? मैं कह रहा हूँ सेनेट में इस तरह की बात। शुमाला साहब, एक दफा ये जो हमारे सियासतदान है ना जी, एक दफा रोड पे निकले, कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद सड़क पर। अच्छा, आप बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। बच्चे से पूछ लें, एक 12 साल के बच्चे से पकड़ के पूछ लें कि बेटा इलेक्शन कौन जितवाता है, बेटा ये आपकी पार्टी, इनकी अपनी पार्टी के बारे में पूछ लें। कोई सारे हुक्मरान निकले। मैं किसी एक की फेवर नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड बोलो। हमारे तमाम सियासतदान, एवरीवन इंक्लूडिंग PTI के भी बहुत सारे लोग जिस माइंड सेट से जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान उससे आवाम आगे निकल चुकी है, सियासतदान पीछे रह गए। और ये सियासतदान अगर कोप अप नहीं करेंगे आवाम के साथ तो फिर कुदरत अपना रास्ता बना। यानी आप ये कह रहे हैं कि आवाम में शऊर बेदार हो गया है? यस, आवाम में पॉलिटिकल शऊर बेदार हो चुका है। उसकी वजह इंटरनेट हो, उसकी वजह बानी सोशल मीडिया, उसकी वजह सोशल मीडिया हो, उसकी वजह जो है आवाम का जो भी वजह हो। पॉइंट ये कि ये तो रियलाइज करें हमारे सियासतदान कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आवाम को आप हर पिछली तरह हर नहीं, आप तालीम तो नहीं कह सकते सलमान साहब, क्योंकि तालीम और सेहत दो चीजें ही तो तबाह हुई हैं। ये तो कहा गया था फारूक डार साहब, आपको तो पता है, तालीम और सेहत तबाह कर दी किसी भी कौम की, तो वो तो खत्म है। बिल्कुल। आप अगर आप देखें ना, चले मैं दोबारा ये कितने हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि आप पूरे मुल्क के अंदर जो मेरिट का निजाम शुरू से चल रहा है, चाहे वो CSS एग्जाम हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो अफसर चाहिए, वो CSS अफसर है जिसने पूरा निजाम चलाना होता है और वो एक मुकाबले का इम्तिहान होता है जिसमें वो तमाम मराइल से गुजरते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी क्रीम निकाल के लेके आते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं लेकिन है। सिंध के अंदर पिछले 50 साल जानते हैं। नहीं, सिंध के अंदर पिछले 50 साल से कोटा सिस्टम लगाया हुआ, जो भुट्टो साहब ने सिर्फ 10 साल के लगाया था। तो आप देखें कि वो 33 नंबर 40 नंबर लेके अफसरशाही CSS अफसर बन जाता है, और ये कराची का बंदा जो 60 70 80% लेके भी CSS अफसर नहीं बनता। तो आप उस एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी, कॉम्पिटेंसी
किस तरह कैसे देखते हैं सलमान साहब? अभी जो हमने देखा, अब ये तालीम की बात आ गई है तो ये बात तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। MCAT के जो टेस्ट हुए हैं ये सर कैसे 2-2 दफ़ा टेस्ट हुए हैं और अभी भी मामलात कुछ ज़्यादा बेहतर है नहीं, आपके तो इल्म में होगा ही है। देखिए अलमिया ये है कि पाकिस्तान का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसको हम अपना बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड, जितना मैं देखता हूँ कराची में लोगों का उससे ईमान उठ चुका है। हमारे बोर्ड से ईमान उठ चुका है, हमारे एजुकेशनल निज़ाम से, हमारे एजुकेशनल बोर्ड से, हमारे एजुकेशनल सिस्टम से, चाहे वो मिडिल सेकेंडरी बोर्ड हो और चाहे वो HSC हो। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा हूँ और हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो उनका माइंडसेट मैंने रीड किया। मैं करियर काउंसलिंग भी करता रहा हूँ उनकी, तो वो कहते हैं कि हम भरोसा नहीं करते, ये डिग्री जो मिल रही है हमें, ये इसकी पेपर की वर्थ ही नहीं है, ना यहाँ है ना बाहर है, जबकि वो हम खरीद रहे हैं, जबकि खरीद इतना पैसे दे के ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और इसके पैरेलल जो है वो जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उस पर बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है और उस पर ज़्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं। तो ये हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको समझ में नहीं आ रही। जो MCAT के एग्जाम में हो रहा है, जो बोर्ड के एग्जाम में हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में हो रहा है, जो HSC के अंदर होता है यूनिवर्सिटीज के साथ, ये सबको पता है, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो क्या ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम को नजर नहीं आ रहा, मिनिस्ट्री को नजर नहीं आ रहा? सिंध के अंदर हजारों घोस्ट स्कूल्स हैं, हजारों, यानी कि वो घोस्ट स्कूल्स जहाँ पे तनख्वाहें तो दी जाती हैं लेकिन पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती। ये नहीं पता हमारे एजुकेशन जानवर बंदे, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं पता, वजीर आला सिंध को नहीं पता। अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर रोडों पे फर्श पे लोग पड़े होते हैं, वहाँ बैठ नहीं पढ़ा सकते। लेकिन एक अच्छी मिसाल सरदार शाह साहब ने कायम की थी। उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहा हूँ, आप लोग भी करवाएं, ताकि वहाँ का मेयार भी अच्छा, और उस स्कूल में जहाँ उनके बच्चे पढ़े वहाँ का मेयार वाकई अच्छा हुआ। तो हाँ, तो वो मतलब कुछ चीजें तो हमें भी सीखनी होंगी ना, हमें भी कुछ करनी, मतलब हमें जहाँ रास्ता मिलता है करप्शन का, हम आवाम भी वहीं पे दौड़ पड़ती है। देखिए जापान जैसे मुल्क में या बाहर जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ अगर 1 लाख स्कूल है या 10,000 स्कूल है ना, उसमें से एक स्कूल अगर खराब निकलता है तो वो मिसाल बन जाता है कि देखो कितना बुरा स्कूल है। यहाँ उल्टा है, एक स्कूल अच्छा निकलता है तो वो मिसाल बन जाता है। ये एक अच्छी बात है। हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रीसेट करना पड़ेगा। हम इतने पस्ती में गिर चुके हैं कि हमारी पहली सीढ़ी भी बहुत बड़ा मंजिल, हमें बहुत बड़ी इमारत नजर आ रही है। आपने स्टैंडर्ड्स की बात की तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अब हमारा स्टैंडर्ड ये रह गया कि किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किसके पास कितना महंगा मोबाइल है, किसके पास कितना बड़ा घर है, ये हमारा स्टैंडर्ड रह गया है। और ये तो है कौम को ये मशवरा देना चाहूंगा, ये मैसेज देना चाहूंगा कि पैसा जो होता है वो कामयाबी की जमानत नहीं होता। कामयाबी की जमानत किरदार होता है, सुकून होता है, आपका करैक्टर होता है, बिल्कुल आप किस शख्सियत के, बुलंद शख्सियत के मालिक, ये है कामयाबी की जमानत, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आप क्राइटेरिया मालो दौलत बनाएंगे जो कि बेजान है, ये कागज के टुकड़े भी बेजान है, ये घर जो बने मट्टी के ये भी बेजान है, लोहे की बनी गाड़ियां भी बेजान, जब आप इन चीजों को जज करना शुरू करेंगे तो उससे पता चलता है दुनिया को कि आपका मेंटल लेवल क्या है एज अ नेशन। हमें चाहिए अपनी कौम में सोशल साइंटिस्ट, मुफक्करीन, वो लोग जो किरदार वाले लोग हों। ये सियासतदानों के किरदार नहीं है माजरत के साथ। अब वो लोग सामने आए या उन लोगों को लेके आए, उनको अपना राय लीडर बनाए, उनके पीछे चलें जिनके किरदार हैं, जिनके करैक्टर हैं, जिनके पास इल्म है, जिनके पास शऊर है, जिनके पास तमद्दुन है। ठीक, फारूक डारी साहब अब वक्त मुख्तसर रह गया, लास्ट मैसेज आपसे भी लेना चाहूँगा। देखिए इन्होंने जैसे कहा कि हमारा तालीमी निज़ाम इतना गिर चुका है, यही वजह है कि आज O लेवल A लेवल पे की तरफ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हम वहाँ अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा निज़ाम सही नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें रिवैम्प करना होगा और हमें हमारे बच्चों को सही तालीम देनी होगी और हर चीज़ पे मेरिट पे चलना होगा। और अगर हमने तरक्की करनी है तो हमारा हर इदारा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चले, उस अपनी आइन के मुताबिक चले, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चले और अब उसकी हुदूद में रह के काम करें। ये और तभी तरक्की कर सकते हैं, वरना ये मुज़ाकरात, ये इनसे मिलना वो मिलना, ये सब बेकार बातें हैं। जिसने फैसला करना है वो सोचे कि ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है जो मकसद बहरहाल अच्छी बात। जैसे इन्होंने कहा कि आज जो है मॉरल की बात है कि ये नहीं कि इंसान मॉरली कितना स्ट्रांग है
वही اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, تبھی معاشرے کی اخلاقی جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ فاروق راٹھی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ پروفیسر سلمان راجہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ مولا بخش سومرو صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین بالکل فیصلے ہونے چاہیے, عوامی مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے, ملکی مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے, ذاتی مفادات کو اب سائڈ پہ رکھ کے کم از کم اب قومی مفاد کی طرف جانا ہوگا, تبھی کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.